Today topic immunity. Immunity is two types, innate and acquired immunity. Introduction. The term immunity, Latin words of immunitas, meaning the freedom from the disease. It is defined as the resistance offered by the host against microorganisms or any foreign substance. Immunity can be broadly classified as two types, innate immunity and acquired and adaptive immunity. Innate immunity presents right from the birth and acquired and adaptive immunity acquiring during the course of the life. Difference between innate and acquired immunity. Innate immunity is resistance from the infection that an individual process from the birth. Resistance to infection that an individual acquiring during his lifetime in acquired immunity or adaptive immunity. Immune response occur in minutes, immune response occur in days. Okay. Prior expose to the antigen is not required. Supplement following the antigen is exposure. ठीक है. इसके अंदर होगा immunological memory is absent, immunological memory is present. Response to the microbial antigens that are not specific to some microbes, others share the many microbes in innate immunity. Response to specific microbial antigens in acquired immunity. Host cell receptors, pattern recognition receptors are non-specific like toll-like receptors. Host cells response are specific, example T cells receptor and B cells and immunoglobulin receptors. नेक्स्ट इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है अपने, तो दोनों के इनेट इम्यूनिटी में कंपोनेंट्स इज द एनाटॉमिकल बैरियर सच एज लाइक स्किन एंड म्यूकोजा, फिजियोलॉजिकल बैरियर लाइक बॉडी टेम्परेचर एंड फेगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स, इन्फ्लामेटरी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, other classes of the lymphocyte like T cells, natural killer cells, B1 cells, mast cells, dendritic cells, component pathways, alternative pathway, fever and inflammation response, and cytokines and tumor necrosis factor alpha, certain interleukins, interleukin 1, interleukin 6, 8, 12, 16 and 18, and acute phase reactant proteins APR. तो ये सब है अपनी इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स. मेन कंपोनेंट्स है टी सेल्स एंड बी सेल्स एंड क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड साइटोकाइंस 2, इंटरल्यूकिन 4 and 5. और टाइप ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन बी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इम्यूनिटी. नेक्स्ट अपना इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी इज ए इनबॉर्न रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन दैट एन इंडिविजुअल प्रोसेस राइट फ्रॉम द बर्थ ड्यू टू हिज जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप. तो अपने इनेट इम्यूनिटी के फीचर्स अपने पढ़े. एक्ट करता है फ्यू मिनट्स के अंदर, प्योर माइक्रोबियल एक्सपोज इज नॉट रिक्वायर्ड एंड डायवर्सिटी इज लिमिटेड, नॉन स्पेसिफिक एंड नो मेमोरी सेल्स प्रेजेंट. मैकेनिज्म क्या इनेट इम्यूनिटी का, सबसे पहले होगा रिसेप्टर का इंटरेक्शन होगा. क्लास क्लोज कर दो. Following the exposure to the microorganisms, survival mediators of innate immunity are reconstituted of the site of the infection. First इसमें attachment होगा when they involve the binding to the surface molecules of the microorganism to the receptor on the cells of innate immunity. फिर नेक्स्ट क्या होगा, माइक्रोबियल सरफेस मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर. रिपीटेड पैटर्न ऑफ द कन्वर्जन मॉलिक्यूल्स विच ऑफ द कॉमन टू द मोस्ट माइक्रोबियल सरफेस कॉल्ड इज द MAMP, माइक्रोब्स एसोसिएट मॉलिकुलर पैटर्न. एग्जाम्पल है पेप्टोग्लाइकन लेयर, लाइपोपोलिसैकेराइड लेयर, टिकोइक एसिड्स एंड लाइपोप्रोटीन प्रेजेंट द बैक्टीरियल सरफेस. फिर नेक्स्ट अपना आता है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स PRP, मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट लाइक फैगोसाइटोसिस that the recognize of the MAMP. ठीक है, microbial associate membrane proteins. They are the generally convert regions encoded of the germline cells like toll-like receptors. Classical example of the pattern recognition receptors. Mainly receptor for the including the innate immunity. Signals generated following the binding of the toll-like receptors to MAMP activation transcription factors stimulating expression of the gene encoding cytokines and enzymes involved. Survival the antimicrobial activity of the cells of the innate immunity. Components of the innate immunity. Component of the innate immunity अपन ने पहले पढ़ा. It is skin barrier and mucosal barrier, phagocytes, natural killer cells, mast cells and dendritic cells. Other components है complement pathway, inflammatory response, normal resident flora, cytokines and APR. एनाटोमिकल बैरियर से फिजियोलॉजिकल बैरियर में अपना फर्स्ट आता है स्किन बैरियर. इसके अंदर मैकेनिकली प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रोब. ठीक है, स्किन ने अपना प्रिवेंट कर दिया. फिर प्रोड्यूस द सीबम कंटेनिंग एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड एंड फैटी एसिड.
किलिंग द माइक्रोब्स एंड द इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट्स। सेकंड अपना आता है म्यूकोसल बैरियर। इसके अंदर अपना फर्स्ट आता है म्यूकस मेम्ब्रेन, cilia and normal flora। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में अपना कहते हैं प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स मैकेनिकली बाय द प्रोड्यूसिंग म्यूकस विच एंट्रैप द माइक्रोब्स। सीलिया प्रेजेंट ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉपर्ली द माइक्रोब्स आउटसाइड। तो सीलिया अपन को प्रोटेक्ट करता है माइक्रोब्स को एंट्री होने से। तो ये अपने सारे बैरियर है इनेट इम्यूनिटी के। फिर नेक्स्ट थर्ड आता है अपना नॉर्मल फ्लोरा। इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी म्यूकोजा आर द लाइन बाय द नॉर्मल फ्लोरा। फिर नेक्स्ट अपने आते हैं फिजियोलॉजिकल वे में। फर्स्ट आता है अपना टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द सम माइक्रोब। ओके, लो पीएच होती है तो गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिट मोस्ट ऑफ द माइक्रोब। सिक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं म्यूकोजिक लाइक स्लाइवा, टीयर्स, गैस्ट्रिक जूस, स्वामाइन्स एंड लैक्टोफेरेन। तो ये सब भी अपन को प्रोटेक्ट करता है माइक्रोब्स को अपनी बॉडी के अंदर एंटर होने से। तो जैसे सलाइवा वो क्या करेगा, एंजाइम इन द सलाइवा डैमेज ऑफ द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। नेक्स्ट अपना टीयर्स होता है कंटेनिंग द लाइसोसोम्स एंड डिस्ट्रॉय द पेप्टोग्लाइकन लेयर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, एसीएल किल्स द माइक्रोब्स बाय इट इज द लो पीएच। नेक्स्ट आता है अपने फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स जो अपने इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं लाइक न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस इंक्लूडिंग द मोनोसाइट्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। Rapidly recruited or to the infection sites and phagocytes involve the three sequential steps. First, they engulf the microbes and subsequent host in the phagosomes, fusion of the lysosome with the phagosomes to form the phagolysosome microbial killing. फिर अपने नेक्स्ट आते हैं नेचुरल किलर सेल्स, क्लासिकल lymphocytes that kill virus infected cell and tumor cells. Other rare classical lymphocytes होते हैं T cells, also called the interepithelial lymphocytes present in the epithelial lining of the skin and mucosa. Natural killer cells presenting the epithelium and lymphoid organs. B1 cells found mostly the peritoneal cavity and mucosal tissue. Marginal zone B cells present in the edges of the lymphoid follicles and of the spleen. Mast cells presenting lining of the respiratory and other mucosa, activated by the microbial product binding like the receptor, toll-like receptor by the IgE antibody depending mechanism. They release abundant cytoplasmic granules rich the histamine, prostaglandins, and cytokines that initiate inflammation of the proteolytic enzyme that kill the bacteria. Dendritic cells कैसे respond करती है? Respond to the microbes by producing the numerous cytokines that initiate inflammation, serve as the vehicle transporting the antigen from the skin and mucosal sites to the lymph nodes where they present the antigen to T cells and bridge between the innate and acquired immunity. कॉम्प्लीमेंट पाथवे कैसे रेस्पॉन्स करता है, कैसे हेल्प करता है? अल्टरनेटिव एंड मैनोज बाइंडिंग पाथवे आर द चीफ मीडिएटर ऑफ द इनेट इम्यूनिटी. Alternative component pathways activated in the response of the bacterial endotoxins. Mannose binding pathways stimulate of the mannose carbohydrate residues on the bacterial surface. Next है biological functions क्या? lysis करता है टारगेट माइक्रोब्स को by the forming pore and microbial surface. Stimulate करता है inflammation को by the secreting inflammatory mediators. Stimulate acquired immunity. Complement are other the bridges between the acquired and innate immunity. Inflammatory response. Inflammation is defined as the biological response of the vascular tissue to the harmful stimuli such as the microorganism or other foreign substance. Next is the vasodilation due to the release of the vasoactive substance from the damaged tissue and leakage of the plasma proteins through the blood vessels. तो फर्स्ट इसके अंदर क्या होगा, अपना टिश्यू बैक्टीरिया है, टिश्यू डैमेज। इसमें सबसे पहले उसका टिश्यू डैमेज रिलीज द मीडिएटर दैट द इंड्यूस कैपिलरी परमेबिलिटी, फिर लीकेज होगा फ्लूइड का एंड नेक्स्ट अपना इसके अंदर एक्सुडेट होगा और फैगोसाइट्स करेगा। फिर उसके बाद में फैगोसाइट्स एंड एक्सुडेट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। तो ये अपना इम्यून रेस्पॉन्स होता है। The next is like neutrophils, phagocytes होगा of the site of the inflammation and क्या क्या steps होते हैं? First होता है अपना migration, adherence of the endothelium, rolling of the endothelium, extravasation, move out to the blood vessels and chemotactic migration of the inflammatory sites. Engulf of the microbes and dead material by the phagocytes, destruction of the microbes. Inflammation is not always protective in the nature, hypersensitive reactions. नेक्स्ट नॉर्मल रेजिडेंट फ्लोरा कैसे प्रिवेंट करता है? तो नॉर्मल रेजिडेंट फ्लोरा लाइन द इंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट एंड complete the pathogens for the nutrition and produce the antibacterial substance. Next the cytokines in the response of the
Microbial antigen dendritic cells, macrophages, and other cell secretory survive the cytokines that mediated many of the cellular reactions of the innate immunity, such as like tumor necrosis factor, TNF, interleukin 1, 6, 8, 10, and 16, interferons alpha and beta, and task-forming growth factor TNF, TGF beta. Acute phase reactant phase protein synthesized by the liver at state concentration, but there is this synthesis either increase or decrease exponentially during the acute inflammatory conditions. APR can also be synthesized by the various other cells such as the endothelial cells, fibroblasts, and monocytes and adipocytes. Positive acute phase reactant proteins, C-reactive protein, complement proteins, coagulate proteins, and proteinase inhibitors, and metal binding proteins. नेगेटिव एपीआर कौन कौन से होते हैं अपने प्रोटीन those level of the decrease during the acute inflammatory response, creating the negative feedback that stimulate to the liver and produce the positive APR. Example albumin, transformin, antithrombin. रोल क्या है इसका APR का have the various microbial and anti-inflammatory activity like the complement factor. Metal binding proteins can be created various metals such as the iron, copper, making the unfavorable for the bacteria. सी रिएक्टिव प्रोटीन का क्या है बिलोंग टू द बीटा ग्लोबुलिन फैमिली सीआरपी सो नेम्ड बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेट विद द सी कार्बोहाइड्रेट एंड एंटीजन ऑफ द pneumococcal. CRP is not the antibody against the C carbohydrate antigen for the pneumococcal. It is a non-specific can be raised of the anti-inflammatory condition. नॉर्मली कोई भी अपना इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है तो सी रिएक्टिव जो प्रोटीन होता है वो इंक्रीज होता है. ठीक है. तो कॉमनेस मार्क ऑफ द अक्यूट इन्फ्लेमेशन यूज ऑफ द मोस्ट डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी. कोई भी अपना जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड है अपना रोमैटिक अर्थराइटिस है या कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज में अपना सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज होता है. ठीक है. नॉर्मल रेंज होती है इसकी लेस देन 0.2 mgv/dl. आपका एमसीक्यूज में पूछा जाता है ये नॉर्मल रेंज 0.20 mg/dl. इंक्रीज बाय द सर्वाइव फोल्ड ऑफ द अक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन. इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज लेस देन 1 mg/dl तो हैवी एक्सरसाइज, कॉमन कोल्ड एंड प्रेगनेंसी. ये क्वेश्चन आता है सी रिएक्टिव प्रोटीन पे. मॉडरेटली इंक्रीज होता है 1 to 10 mg/dl में जैसे ब्रोंकाइटिस, सिस्टाइटिस, मैलिग्नेंसी, पैंक्रेटाइटिस एंड मायोकार्डियल इंफेक्शन. फिर मार्कली इंक्रीज मोर देन 10 कब होता है, कौन कौन सी कंडीशन में लेस देन 1 रहता है, 1 to 10 कब होता है, मोर देन 10 कब होता है. तो इंक्रीज अपना कब होता है अक्यूट बैक्टीरियल इंफेक्शन, मेजर ट्रॉमा एंड सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस के अंदर. डिटेक्शन ऑफ द सीआरपी कैसे चेक करते हैं अपन प्रेसिपिटेशन मेथड यूजिंग द सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन. एब्सोल्यूट इज नॉट यूज नाउ. लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट से अपन इसको डिटेक्ट करते हैं. ठीक है. तो एग्लूटिनेशन टेस्ट यूजिंग द लैटेक्स पार्टिकल्स कोटेड विद द एंटी सीआरपी एंटीबॉडी मोस्ट वाइडली यूज. डिटेक्शन लिमिटेशन बाय द लैटेक्स एग्लूटिनेशन इज 0.6 mg/dl. हाईली सेंसिटिव कब होता है टेस्ट कौन सा है इसका माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सीआरपी कैन बी डिटेक्टेड वेरियस मेथड लाइक एनेफ्रोमेट्री, एंजाइम इम्यूनोएसे. Acquired and adaptive immunity. Defined as the resistance against the infected foreign substance that and the individual acquires and adapt during the course of his life. 2 टाइप्स की अपनी ये होती है, अपने पढ़ा था. फिर इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है. तो मीडिएटर कौन कौन से होते हैं, टी सेल्स होती है, बी सेल्स होती है. तो अपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मीडिएटर्स हैं टी सेल्स, बी सेल्स. That is chief mediator of the acquired immunity. Other included classical complement pathway, antigen presenting cells and cytokines, interleukin 2, 4 and 5. ये कंपोनेंट्स है ना. ठीक है. तो अपने इनेट इम्यूनिटी के ये कंपोनेंट्स सारे भी पढ़े. अब अपने आ रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टी सेल्स, बी सेल्स, क्लासिकल कॉम्प्लेमेंट पाथवे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड साइटोकाइंस. तो साइटोकाइंस में अपने इंटरल्यूकिन 2, 4, 5 एंड इंटरल्यूकिन फैक्टर्स. तो ये अपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, ये अडेप्टिव इम्यूनिटी के हैं. क्वेश्चन आता है दोनों के डिफरेंस में. ठीक है. तो ये अपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी कंपोनेंट्स है. तो इसकी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की रिक्वायर्ड प्योर द माइक्रोबियल एक्सपोजर. एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप ओनली आफ्टर द एक्सपोजर टू द माइक्रोब. स्पेसिफिक होता है ये. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज हाईली स्पेसिफिक डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्पेसिफिक एंटीजन दैट द यूनिक टू द माइक्रोब. और प्रॉपर्टी क्या है, अपना जो इनेट इम्यूनिटी था उसके अंदर मेमोरी सेल्स एब्सेंट होती है, पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर अपनी मेमोरी सेल प्रेजेंट होती है. ये प्रोपोर्शन ऑफ द टी एंड बी सेल्स बिकम मेमोरी सेल्स following the primary contact to the microbe, which play the important role when the microbe in the uncounted subsequently. Diversity is wide. Acquired immunity through the tag time of the developing the active against the wide range of the receptors of the antigens.
Next property is the host receptors of the acquired immunity are the specific for the particular microbial antigen. Example including the T cells receptors and B cells and immunoglobulins receptors, uncoated by the genes produced by the somatic recombination of the gene segment. टू टाइप्स की होती है अपनी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, सेकंड अपनी होती है आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट फर्स्ट अपना आता है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज अ रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय द इंडिविजुअल टुवर्ड्स एंड द एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। एक्टिव इम्यूनिटी में भी इंक्लूड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है अकर फॉलोइंग द एक्सपोजर टू द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। एग्जाम्पल इज द मीजल्स वायरस इन्फेक्शन। सेकंड अपना आता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसके एग्जाम्पल्स है अपना मीजल्स वैक्सीन डेवलप फॉलोइंग एंड द एक्सपोजर टू एंड द इम्यूनोजेंस बाय द वैक्सीनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन पूछते हैं आप लोगों से एग्जाम में। और कितने टाइप की होती है एक्टिव इम्यूनिटी? टू टाइप्स की होगी अपनी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है अपना, इसमें होता है द अकर फॉलोइंग एंड एक्सपोजर टू द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। और आर्टिफिशियल में अपना होता है कि डेवलप फॉलोइंग एंड द एक्सपोजर टू एंड द इम्यूनोजेंस बाय द वैक्सीनेशन। लॉन्ग लास्टिंग होती है एक्टिव इम्यूनिटी यूजली लास्टेड फॉर द लॉन्गर पीरियड बट द ड्यूरेशन वेरियस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द पैथोजन। लास्ट लाइफ लॉन्ग एग्जाम्पल है इसका सर्टेन द वायरल इन्फेक्शन चिकन पॉक्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स एंड मम्स एंड रूबेला। ठीक है, इसका होता है फिर अपना होता है कनकॉम्बिनेंट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में बी लास्ट एज ए लॉन्ग एज द माइक्रोब इज प्रेजेंट। वंस ऑफ द डिजीज इज cured and patient of the becomes susceptible to the microbial against the spirochetes and plasmodium. Active immunity may not be protected by at all H. Beckeri, and the patients may be develop the genital lesions following the reinfection even the while the original infection of the is the active. फिर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स इसका ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है? व्हेन द एंटीजेनिक एक्सपोजर अकर इन द फर्स्ट टाइम द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस। लैटेंट होता है, लॉग पीरियड्स होता है। एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप इज द करेस्पॉन्ड टू द टाइम एंड रिक्वायर्ड ऑफ द होस्ट इम्यून अपरेटर्स टू द बिकम एक्टिव। इफेक्ट्स क्या? इफेक्टर सेल्स होती है अपनी मेजोरिटी ऑफ द एक्टिवेटेड द टी सेल्स एंड बी सेल्स अगेंस्ट द एंटीजेनिक स्टिमुलेशन बिकम द इफेक्टर्स सी एंड बी सेल्स। इफेक्टर टी सेल्स as the helper T cells and cytotoxic T cells, effector B cells and include the plasma cells. Memory cells, a minor proportion of the stimulated T and B cells become the memory cells, T cells for the secondary immune response. Antibodies इनके अंदर क्या होता है? Activated the B cells produce the antibodies mainly IgM type. IgM chronic infection को बताता है या acute को? IgM एंटीबॉडी यदि इंक्रीज होती है तो वो क्रॉनिक इन्फेक्शन है या अक्यूट इन्फेक्शन है? और आईजीएम अक्यूट इन्फेक्शन को शो करता है। आईजीएम यदि इंक्रीज होगा तो अक्यूट इन्फेक्शन है। ठीक है, आईजीजी क्रॉनिक इन्फेक्शन को शो करता है। एंटीबॉडी अपेयर इन द सीरम इज स्लो एंड स्लैगिशली मैनर रीच द पीक मेंटेन ऑफ द लेवल ऑफ द वाइल एंड देन fall डाउन। फाइनली लो टाइटर इज द बेसलाइन एंटीबॉडी मे बी मेंटेनेड इन द सीरम। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है ये अपना लैग फेज है, आईजीएम लो टाइटर एंड नेगेटिव फेज एंड आईजीजी हाई टाइटर। तो प्राइमरी एंटीजेनिक एक्सपोजर होगा, फिर सेकेंडरी एंटीजेनिक एक्सपोजर होगा। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स अपना जो होता है वो लैग फेज में होता है और जो आईजीएम का जो टाइटर होता है वो लो होता है और प्राइमरी एंटीजेनिक एक्सपोजर में इंक्रीज होता है। ठीक है, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स अपना सेकेंडरी एंटीजेनिक एक्सपोजर में इंक्रीज होगा और जब आईजीजी का जो टाइटर होगा तब सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स अपना इंक्रीज होगा। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स अपना कहता है व्हेन द सेम एंटीजेनिक एक्सपोजर अकर द सब्सिक्वेंटली द इवेंट विच टेक प्लेस आर द फॉलोज लैटेंट पीरियड, नेगेटिव फेज एंड एंटीबॉडी। पैसिव इम्यूनिटी अपन ने अपने एक्टिव इम्यूनिटी पढ़ ली। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी में क्या है अपना? पैसिव इम्यूनिटी से डिफाइन एज द रेजिस्टेंस दैट इज ट्रांसफर्ड पैसिवली टू ए होस्ट एंड रेडिमेंट फॉर्म द विदाउट एक्टिव प्रेसिपिटेशन ऑफ द होस्ट इम्यून सिस्टम। इसके अंदर अपना क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी भी टू टाइप्स की होती है, नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा? इन्वॉल्व द आईजीजी एंटीबॉडी ट्रांसफर फ्रॉम द मदर टू फीस्टेड अक्रॉस द प्लेसेंटा। ठीक है, तो अपना इथ्रोब्लास्टोफेटालिस होता है, उसके अंदर अपना ये होता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। फिर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, इसके अंदर क्या होगा? रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन को अपन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी बोल रहे हैं। डेवलप द फॉलोइंग रेडीमेड ट्रांसफर ऑफ द कमर्शियली प्रिपेयर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, तो ये अपना एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का और नेचुरल इम्यूनिटी का। रोल ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी, क्या रोल्स है? इम्यूनोडेफिशिएंट इंडिविजुअल एज द होस्ट इम्यून अपरेटर्स इज नॉट इफेक्टिव। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस अपन कौन कौन सी डिजीज में करते हैं? पीईपी कौन कौन सी वायरल डिजीज में यूज कर रहे हैं? रेबीज में कर रहे हैं और एचआईवी में और हेपेटाइटिस और
कोविड में। हम्म। फिर रेबीज, हेपेटाइटिस और HIV। Many immediate effect of the warranted passive immunity develop faster, no long phase and negative phase. There is a no immunological memory as the memory R cannot be involved and booster dose are not effective. डिफरेंस क्या है दोनों प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में? प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट द प्राइमरी एंटीजेनिक चैलेंजेस, इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट द सब्सिक्वेंटली एंटीजेनिक चैलेंजेस। जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है अपना स्लो है, अपना लेट एंड शॉर्ट लाइव्ड है, ये प्रमोट है, पावरफुल है और प्रोलॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग है। जो लैग पीरियड होता है वो लॉन्गर होता है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में 4 to 7 days का, और जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में लैग फेज होता है वो एब्सेंट होता है, शॉर्ट होता है। नो नेगेटिव फेज, इसके अंदर नेगेटिव फेज हो सकती है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द लो टाइटर इज ऑफ द IgM टाइप, और इसका जो टाइटर होता है वो हायर होता है और टाइप्स होता है IgG एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल नेविक बी सेल्स इन द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर, और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर अपना जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो मेमोरी बी सेल्स होती है। ठीक है, बहुत टी डिपेंडेंट एंड टी इंडिपेंडेंट एंटीजन आर प्रोसेड इन द इम्यून प्राइमरी रेस्पॉन्स, ओनली टी डिपेंडेंट एंटीजन आर प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है? डिफरेंसेस पे क्वेश्चन आता है, आप लोग के शॉर्ट नोट्स आता है। एक्टिव इम्यूनिटी में अपना होता है प्रोड्यूस द एक्टिव बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा? इम्यूनोग्लोबुलिन रिसीव द पैसिवली। इंड्यूस बाय द इन्फेक्शन, नेचुरल एंड वैक्सीनेशन आर्टिफिशियल। एक्वायर्ड में होता है अपना मदर टू फीटस IgG ट्रांसफर नेचुरली, और रेडीमेड एंटीबॉडी ट्रांसफर इन द आर्टिफिशियल। लॉन्ग लास्टिंग होता है, लेटेस्ट फॉर द लास्ट फॉर द शॉर्टेड टाइम। लैग पीरियड प्रेजेंट होता है, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर लैग पीरियड एब्सेंट होता है। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर मेमोरी सेल प्रेजेंट होती है, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर नो मेमोरी सेल्स। बूस्टर डोज यूजफुल होती है, सब्सिक्वेंटली डोज इज लेस इफेक्टिव। नेगेटिव फेज में अकर, नो नेगेटिव फेज। In immunodeficiency individual not useful in active immunity, useful for the immunodeficient individuals in the passive immunity. Disease क्या है दोनों का? The innate and acquired immunities do not work independently. They function is a highly interactive and collaborative. The manner increase each of the other efficiency to producing the combined response. Macrophage is a macrophage and dendritic cells bridges between the innate and acquired immunity. Belong the innate immunity system, but as the antigen presenting cells, they present the antigenic peptide to the T cells. Cytokines secreted from the macrophages are the also involved in the T cell activation. ये होता है ADCC, antibody dependent cell mediatory cytotoxicity. These type of the cells mediatory immune response which involve the both innate and adaptive acquired immunity components. Cells of the innate immunity such as the natural killer cells, eosinophils and neutrophils destroyed by the cytotoxic effects, and the target cells coated in specific antibody. Complement, classical and complement pathway. साइटोकाइंस भी है दोनों का प्रीजियस सीक्रेट फ्रॉम द सेल्स। आवाज क्यों कर रहे हो तुम लोग? Cytokines is secreted from the cells of the innate immunity, can be activated cell of the adaptive immunity and vice versa. Example, interleukin first secreted from the macrophages activated helper T cells, and the interferon gamma secreted by the helper T cells can be activated macrophages. फिर अपना था रेयर classes of the lymphocytes such as the delta T cells, natural killer cells, B1 cells, and marginal zone B cells. These cells have the many characteristics that place them in the border of the innate and acquired immunity. Although their receptors are encoded by the somatic recombinations of the genes, but these receptors have the limited diversity. Develop a memory phenotypes and contrast of the property of the innate immunity. Local and mucosal immunity. Immune response that is active at the mucosal surface such as the interstitials and respiratory and genitourinary mucosa. Mutated by the type of the IgA antibody called the secretory IgA antibody. Local immunity can be only include the natural infection or by live vaccination, does not like the killed vaccine. Herd immunity. Defined as the overall immunity of a community. Add a herd immunity towards a pathogen. Eliminate that the contribute to create a strong herd immunity.
Are occurrence of the clinical and subclinical cases of the herd immunity, ongoing immunization programs, herd structure, type of the population involved, type of the pathogen. Herd immunity may not be strong in a community antigen all the pathogens. Herd immunity develops following the effective vaccination against the disease like diphtheria, pertussis, measles, mumps, rubella, polio and smallpox vaccine. फिर आता है अपना adaptive immunity. Special type of the cell-mediated immunity which develop following the injection of the immunoglobulins component T lymphocytes known as the transfer factors. Useful for the treatment when the CMI is low. Example of the leptometis leprosi.